हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर लिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर लिया और अब हम लोग पहुंच चुके हैं द स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो अब ये जो स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन में जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उसमें डिस्कस किए थे कि ये जो हमारा रिप्रोडक्शन स्टेज जो होता है that occurs in basically three phases, that is gametogenesis means the formation of gametes, okay, and this gametogenesis is of two types. One occur in the male, so one is called the male gametogenesis, and the male gametogenesis is the another name that is given to the male gametogenesis is spermatogenesis. Okay, so spermatogenesis, and the other type of gametes, that formation takes place in the ovary in the female body, and that is called the female gametogenesis. And female gametogenesis is given another name, that is oogenesis. Okay, and the second stage of sexual reproduction is after the formation of gametes, both the gametes, that is from the male gametes and the female gametes, get united to each other, and this process is called the fertilization. So the next stages of the reproduction is fertilization stages. And after the fertilization of the gametes, that forms the zygote. So we can say that the result of fertilization is zygote formation, and this zygote is again formed is in the diploid form. मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये n एक गैमेट से आया, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द मेल गैमेट्स एंड हाफ number of chromosomes that come from female gametes, and both gametes get united, and the process is called fertilization, and that forms a cell that is called the zygote. So zygote contains both half number of chromosomes from each parent, and this forms the 2n condition, that is diploid in nature. और ये zygote जो बना, that get implanted into the female uterus, and where the embryo development take place. So the third stage of reproduction is embryo development, and this embryo development is going to happen in the female body, especially in the uterus of the female body. ओके तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस, और मेल गैमेटोजेनेसिस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस कहने का मतलब क्या हुआ? स्पर्म का बनना। ठीक है, सो द स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, okay, and this formation of sperm takes place in the testis, as we have already discussed earlier in classes. So here it is written, in testis the development of a sperm is called spermatogenesis, and this development of a spermatogenesis takes or starts at the age of a puberty age in the male, and in the male the puberty age is 11 to 13 years. And if we talk about the spermatogenesis, where the testis is responsible for the production of a sperm, and in this testis especially there is a seminiferous tubule. So if anyone can ask that in testis where exactly sperm formation takes place, तो आप क्या बोलेंगे कि the exact location of the sperm formation is in seminiferous tubule. So the spermatogenesis or sperm formation takes place in seminiferous tubule. और कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक की बातें हम बता रहे हैं जो एम्स और जिपमर में
एसेंशियल है, या फिर आप जिपमर पॉइंट या एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम इंक्लूड्स 2 स्टेजेस। क्या? जब स्पर्मेटोगोनियम, अब ये स्पर्मेटोगोनियम क्या है हम लोग अभी डायग्रामेटिकली देखेंगे, पर समझ लीजिए कि स्पर्मेटोगोनिया वैसा सेल जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्म फॉर्मेशन, तो उस सेल को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और इसमें दो चीज़ें, दो स्टेजेस देखने को मिलता है। एक बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, जिसको प्रोगैमेट्स हम लोग बात कर रहे हैं, और दूसरा बोलते हैं दैट इज मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। ओके ओके, सो दिस spermatids take place in 3 phases, that is phase of multiplication, phase of growth and phase of maturation. And when the spermatids get transformed or the metamorphosis occurs in the mature sperm or mature spermatozoa is called spermiogenesis. Here it is written that spermatids are transformed into spermatozoa, or it is also known as sperm, and by the process is called spermiogenesis. Okay, and after spermiogenesis the sperm head becomes embedded in the Sertoli cells and finally released from the seminiferous tubule by the process is called spermiation. So here is 3 points to remember. First is spermatogenesis. Spermatogenesis means formation of a sperm. Okay, and the second term is spermiogenesis. Spermiogenesis means the metamorphosis of spermatids into the mature sperm is called spermiogenesis, and the third term is spermiation. And spermiation means a release of sperms या spermatozoa from Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubule, and that is called the spermiation. Okay, so let's discuss about the process of spermatogenesis through the diagram. In this diagram, we will discuss about how the sperm formation takes place inside the seminiferous tubule. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक ट्यूब्यूल है, राउंड सर्कुलर ट्यूब है, तो उसके ऊपर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द बेसल लैमेला, दिस इज द बेसल लैमेला. ओके, और बेसल लैमेला के पास एक जो इनिशिएटर के तौर पर इनिशिएट करने वाला, स्पर्म फॉर्मेशन करने वाला जो सेल होता है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस किए, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोगोनियम. और उस सेल को हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इस स्पर्मेटोगोनियम सेल जो स्टेम सेल है उसमें होती है माइटोसिस. मीन्स मल्टीप्लिकेशन हुआ, मतलब कि एक सेल अगर है, अब यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम का अगर क्रोमोजोम संख्या की बात करेंगे, क्रोमोजोम नंबर्स की बात करेंगे, सो दिस स्पर्मेटोगोनियम मस्ट बी इन डिप्लॉयड सेल. ओके, 2n कंडीशन में रहेगा. ठीक, तो अब इसके अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो एक सेल अगर है और इसमें डिवीजन होता है तो 2 सेल बनेगा, और इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस. सो दिस स्पर्मेटोगोनियम सेल गेट माइटोस्ड, मीन्स द मल्टीप्लिकेशन फेज टेक प्लेस, एंड थ्रू दिस 2 टाइप ऑफ सेल is formed. One cell is called the daughter cell type A and other is called daughter cell type B. लेकिन अब इसमें क्या होगा कि जैसे एक सेल है और इससे 2 सेल बने, तो एक सेल को प्रिजर्व कर लिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर्स के लिए, और एक सेल को आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ठीक, तो वही बातें यहाँ पर लिखी है कि जैसे ही स्पर्मेटोगोनियम सेल में माइटोसिस हुआ
तो 2 सेल बने और एक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल टाइप ए, इसको स्टोर कर लिया गया, रिमेन्स एट बेसल लैमेला 4 एज ए प्रिकर्सर सेल, प्रिकर्सर के तौर पर उसको स्टोर कर लिया गया आने वाले टाइम के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और जो दूसरा सेल बना दैट इज़ कॉल्ड द डॉटर सेल टाइप बी, अब इस सेल में फर्दर प्रोसीड करेगा इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो अब क्या होगा कि ये जो सेल बना है दैट इज़ सेल टाइप बी, अब उसमें होगी ग्रोथ होगा, तब इसकी सेल इनलार्जमेंट होगी और सेल इनलार्जमेंट होने के बाद अब ये इंटर करेगा मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि मियोसिस साइकिल और मियोसिस डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज मियोसिस 1 एंड द सेकेंड इज मियोसिस 2। और मियोसिस फर्स्ट जो है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर क्रोमोसोम की संख्या अगर 2n है तब क्या होगा, ये रिड्यूस्ड होकर मतलब ये जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक, तो वही बातें यहाँ पर बोला गया है। जैसे ही डॉटर सेल जो टाइप बी डॉटर सेल है उसमें ग्रोथ होगा और ग्रोथ होने के बाद मियोसिस 1 में इंटर कर जाएगा, और मियोसिस 1 में इंटर करने के बाद अब ये अगर इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो 2 सेल बनेंगे और दोनों सेल आपस में ज्वाइन है। अब ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो रहा है, मियोसिस 1 हम लोग जैसा भी बात बताए कि मियोसिस 1 इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, सो देयर इज 2 टाइप ऑफ सेल that contains half the chromosome numbers, that is n, 2n से n हो गया। और ये जो दोनों सेल है वो आपस में कनेक्टेड है, ये देखिए यहाँ पर कनेक्शन है। सो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड डायड। क्या बोल रहे हैं कि दोनों सेल आपस में डायड फॉर्म में प्रेजेंट है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब इस डायड फॉर्म में अब इस जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आफ्टर डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी ये जो स्पर्मेटोसाइट हुआ इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और ये कंप्लीट होने के बाद दिस फॉर्म दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, और अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और मियोसिस 2 इज नथिंग बट इट इज माइटोसिस। सो माइटोसिस मीन्स फिर 1 से 2 सेल बनेगा, तो ये जो n एक सेल बना और ये एक n सेल बना तो इन दोनों से 2-2 सेल बनेगा एंड दैट फॉर्म्स द अर्ली स्पर्मेटिड्स। अभी तक ये भी जितना भी स्पर्मेटिड्स है अर्ली स्पर्मेटिड्स, फिर इसमें मॉडिफिकेशन होगा दैट कॉल्ड द सेकेंड लेट स्पर्मेटिड्स, और वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे और इस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ठीक, जैसे यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है दिस इज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पर मेंशन है क्या, दिस इज एक लेयर का फॉर्मेशन क्या हुआ है ये। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक अभी जो प्रोसेस हम लोग बात कर रहे थे दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब क्या होगा कि अब इसमें मॉडिफिकेशन होगा, मॉर्फोजेनेसिस होगा, और मॉर्फोजेनेसिस को हम लोग बोले थे स्पर्मियोजेनेसिस, बात किए थे स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस ये सब आपस में जो जुड़ा हुआ है, स्पर्मेटिड्स जुड़े हुए हैं लेट स्पर्मेटिड्स में, इसमें क्या होगा कि ये जो जुड़ा हुआ है ये ब्रेक डाउन होगा और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। गॉट इट? अगर नहीं तो इसको देखिए, इसको इस तरीके समझिए कि यहाँ पर बेसल लैमेला है, बेसल लैमेला इज प्रेजेंट हेयर, वहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनियम सेल है और स्पर्मेटोगोनियम सेल में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद 2 सेल बने, एक सेल प्रिकर्सर के तौर पर फ्यूचर के लिए रह गया, उसको हम लोग टाइप ए सेल बोले, और दूसरा सेल जो बना वो
फर्दर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक, अब ये प्राइमरी जो आगे बढ़ेगा सेल टाइप बी, उसको वो आगे बढ़ेगा, मैच्योर होगा, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जाएगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब उसके बाद उसमें फर्स्ट म्योसिस होगा। फर्स्ट म्योसिस के बाद दोनों सेल आपस में जुड़े हुए रहेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं डायड फॉर्म। और वो किसके थ्रू जुड़े हुए रहेंगे, तो टाइट जंक्शंस के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे। ठीक, अब इस दोनों में, इन दोनों सेल में फर्दर म्योसिस टू कंप्लीट होगा। म्योसिस टू कंप्लीट होने के बाद 4 सेल बन जाएंगे। ठीक, और चारों सेल आपस में कनेक्टेड रहेगा इंटरसाइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू। और फिर ये प्राइमरी या लेट अर्ली स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा। और अर्ली स्पर्मेटिड्स के बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू इंडिपेंडेंट स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्पर्मेटोजोआ या हम लोग बोलते हैं स्पर्म फॉर्मेशन होगा, दैट इज नॉन मूवेबल और नॉन मोटाइल रहेगा। क्या रहेगा, नॉन मोटाइल रहेगा, नॉन मोटाइल इन नेचर। सो हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं कि जो मोटिलिटी होती है स्पर्म की, वो कहाँ गेन होती है, वो होती है एपिडिडाइमिस में। यस, चलिए, थैंक यू, एपिडिडाइमिस याद हो रहा है। चलिए, ये क्लियर है बच्चे, ये क्लियर है। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब कैसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है उसके बारे में हम लोग थियोरेटिकली देख लें। डायग्रामेटिकली समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग थियोरेटिकली देख लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो लगभग 64 डेज़ का डेवलपमेंट पीरियड होता है। कब से, स्पर्मेटोगोनियम सेल जब इनिशिएट होता है स्पर्म फॉर्मेशन में, और फाइनली जो स्पर्म रिलीज होता है, उस पीरियड में 64 डेज़ का टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, और ये 3 फेजेज में होता है। सबसे पहले माइटोटिक प्रोलिफरेशन बोल रहे हैं, मियोसिस, एंड थर्ड इज पैकेजिंग एंड रिमॉडलिंग। अभी हम लोगों ने देख लिया, माइटोसिस हुआ तो क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियम 2 सेल बनाए, एक टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए स्टोर हो गया एज ए प्रिकर्सर के तौर पर, और उसके बाद जो टाइप बी है वो फर्दर उसमें मियोसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ा। तब फिर वो टाइप बी वाला जो सेल है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अब उसमें मियोसिस कंप्लीट हुआ, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। ठीक, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्योंकि वहाँ मियोसिस हो रहा है तो उस फेज को हम लोग मियोसिस बोल दिए। और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो बन गया क्या, अर्ली स्पर्मेटिड्स। उसके बाद फिर मॉडिफाई होकर लेट स्पर्मेटिड्स बना। उसके बाद फिर क्या हुआ, लेट स्पर्मेटिड्स में देखे अभी तक वो स्पर्मेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, और उन सभी को सेपरेट होना है। तो वहाँ पर पैकेजिंग और रिमॉडलिंग हुआ, एंड पैकेजिंग और रिमॉडलिंग उसी को मेटामॉर्फोजेनेसिस हम लोग बोले, और उसी को हम लोग बोलते हैं उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस। सो स्पर्मियोजेनेसिस इज नाउ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। क्या क्या, तो सबसे पहला जो फेज़ है दैट इज गोल्गी फेज। अब गोल्गी फेज में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर गोल्गी अपरेटस फॉर्मेशन करेगा, एक एक्रोजोम का फॉर्मेशन करेगा, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा कैप फेज, फॉर्मेशन ऑफ टेल एंड मैचुरेशन स्टेजेस। ये 4 फेजेस के थ्रू स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट फेज इज गोल्गी फेज। ओके, तो इन द गोल्गी फेज, अब क्या होता है गोल्गी फेज में, तो जो रेडियली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहाँ से शुरुआत होगा, तो जैसे हम लोग यहाँ पर सेल है, ये सेल है, अर्ली स्पर्मेटिड्स, लेट स्पर्मेटिड्स जो बन रहा है, ये सेल है, रेडियल है, राउंड इन शेप है। अब इसमें ये, इसके पास किसी तरीके का पोलर डेवलपमेंट नहीं हुआ, रेडियल सिमेट्री है। तो यहाँ पर अब पोलरिटी डेवलपमेंट होगा, मतलब एक तरफ हेड का फॉर्मेशन होगा और एक तरफ टेल का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। ठीक, सो इन द गोल्गी फेज दिस रेडियली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बिगिंस टू डेवलप इनटू द पोलरिटी फॉर्म। So in the polarity form, one portion becomes the head at the one end and the Golgi apparatus
creates an enzyme that will become acrosome over the head. So in the one polarity क्या होगा कि ये अगर एक पोलरिटी डेवलपमेंट हुआ तो हेड जो फॉर्मेशन हुआ, हेड के ऊपर एक गोल्गी अपरेटस एक एंजाइम सिक्रीट करेगा और जो बाद में जाकर एक्रोजोम का फॉर्मेशन करेगा, और ये एक्रोजोम ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर से एक ये भी आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने आप को थिंकिंग पावर बढ़ा सकते हैं कि अगर ये जो गोल्गी अपरेटस है ये हम लोग सेल चैप्टर में डिस्कस किए थे, सेल चैप्टर में डिस्कशन करना है, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन में उसका यूज़ पढ़ना है, तो आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि सेल का चैप्टर को और इस चैप्टर से कनेक्ट करके देखेंगे, आपको सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मान लें कि पूछ दिया कि एक्रोजोम ओवर द न्यूक्लियस इन द स्पर्म दैट इज फॉर्म्ड बाय, अब किससे होता है, तो वो आपको पढ़ना है सेल चैप्टर में, लेकिन उसका यूज़ इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में पूछा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब क्या होगा कि अब एक तरफ तो हेड बन गया है, अब दूसरा तरफ क्या बना, तो दूसरा तरफ बना है एट द अदर एंड इट डेवलप्स इनटू ए थिकेंड पार्ट एंड दैट फॉर्म्स मिड पीस। अब मिड पीस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपस में एक जगह इकट्ठा होगा एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स बिगिंस टू फॉर्म एन एक्सोनिम, जिसको हम लोग साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्या फाइनली क्या इससे बात निकला कि ये जो सबसे पहले एक राउंड ओवल था जिसको नॉन पोलरिटी था, वो उसमें पोलर डेवलपमेंट हुआ, पोलर डेवलपमेंट हुआ तो दो पोल डेवलप हुआ, एक बन गया हेड, और हेड के ऊपर गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस एक एंजाइम सिक्रेट किया जो बना दिया एक्रोजोम, और वहीं दूसरा जो पोलरिटी हुआ वो बना दिया मिड पीस। अब मिड पीस में क्या रहेगा, तो मिड पीस में रहेगा इन माइटोकॉन्ड्रिया, ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया दैट क्रिएट्स एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड दैट एटीपी मॉलिक्यूल्स विल यूटिलाइज्ड बाय द स्पर्म इन द मूवमेंट। ओके, और वहाँ पर ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस शायद पिछले क्लास में किया था कि जो सेंट्रियोल्स होता है, सेंट्रियोल्स दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है, वन इज कॉल्ड द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स एंड अदर इज कॉल्ड द डिस्टल सेंट्रियोल्स। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स किसको बोलेंगे, तो जो न्यूक्लियस के पास जो सेंट्रियोल्स रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स। ठीक, और उससे न्यूक्लियस से जो दूर रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे डिस्टल सेंट्रियोल्स। डी फॉर डिस्टेंस एंड पी फॉर पास। तो जो न्यूक्लियस के पास में रहेगा वो सेंट्रियोल्स को बोल देंगे प्रोक्सिमल, और जो दूर रहेगा उसको बोल देंगे डिस्टल सेंट्रियोल्स। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल्स है वो अपने आप में चेंज हो जाता है, और चेंज मॉडिफाई होने के बाद बना देता है बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी फिर एक्सोनिम का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, और वही टेल तक चला जाएगा, एंड तक चला जाएगा, जिसको हम लोग फिर लास्ट में फाइनली जहाँ पर टेल एंड होगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एंड पीस बोल देते हैं। ठीक, तो चलिए दिस इज दी गोल्गी फेज। हम लोग नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैप फेज और एक्रोजोमल फेज बोलते हैं। तो इस फेज में क्या होगा, तो जो गोल्गी अपरेटस है वो न्यूक्लियस हेड पोर्शन में न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैप फेज। और ये कैप फेज जो बना है, ये कैप बना है दैट इज एक्रोजोम का बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको एक्रोजोमल फॉर्मेशन बोलते हैं या एक्रोजोमल फेज बोलते हैं। द थर्ड फेज इज फॉर्मेशन ऑफ टेल। अब ये फॉर्मेशन ऑफ टेल कैसे बन रहा है, अभी हम लोग इसका भी डिस्कस कर लिए कि जो दो सेंट्रियोल्स बने उसमें से जो डिस्टल सेंट्रियोल्स है वो क्या काम करता है कि वो इलोंगेट करता, पहले अपने आप को चेंज करता है किस में, बेसल बॉडी में, और उसके बाद फिर वो इलोंगेट करते हुए टेल का फॉर्मेशन करता है। तो वन सेंट्रियोल्स of the cell elongates and become the tail of a sperm, and this temporary structure is called Manchette assist
in this elongation. In this phase, the developing spermatozoa orients themselves so that their tails point towards the center of the lumen and away from epithelium. तो जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे ये मान लें कि हम लोग का क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और ये इधर सेल, ढेर सारे सेल हैं, और सेंटर में इसके ल्यूमेन है। तो ये जो स्पर्म अब टेल फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरीके से अपना आपको ओरिएंट करते हैं कि टेल बिल्कुल ल्यूमेन में चला जाए और उसका हेड जो पोर्शन रहे वो सेलुलर पार्ट्स के तरफ रहे। ये क्या हो गया, ये हो गया ल्यूमेन, और ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, तो ये जो सेलुलर पार्ट्स है उधर सर्टोली सेल्स आएगा, और सर्टोली सेल्स का काम क्या है कि दैट नॉरिश द डेवलपिंग स्पर्म्स। तो डेवलपिंग स्पर्म को नॉरिश करने के लिए, क्योंकि उसका हेड सर्टोली सेल्स की तरफ है, तो उसको नॉरिश प्रोवाइड करेगा, और टेल का कोई ज़रूरत नहीं है तो वो ल्यूमेन में चला जाएगा। तो इस तरीके से ओरिएंट कर देगा। अब आता है मैचुरेशन फेज, द लास्ट फेज ऑफ क्या चीज़, स्पर्मियोजेनेसिस। तो द लास्ट स्टेज इज मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होगा कि जो एक्सेस साइटोप्लाज्म रहेगा उसको सर्टोली सेल्स उसको फाइगोसाइटोस्ट कर देगा। ठीक, द एक्सेस साइटोप्लाज्म दैट कॉल्ड रेसिडुअल बॉडी of regard is phagocytosed by surrounding Sertoli cells in the testes. The mature spermatozoa are released from Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubule. By this process is called the spermiation. ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। बट अब यहाँ पर जो स्पर्म रिलीज होगा दैट लैक्स द मोटिलिटी, ये भी डिस्कस किया, बट द रिजल्टिंग स्पर्मेटोजोआ लैक्स मोटिलिटी, और वो मोटिलिटी गेन कहाँ पर करेगा, तो एपिडिडाइमिस में करेगा। तब ये स्पर्मेटोजोआ अब क्या करेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में जाएगा, एंड थ्रू रेटी टेस्टिस वास एफरेंसिया में जाएगा, और वास एफरेंसिया से चला जाएगा एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस में ट्रांसपोर्ट होने के बाद वहाँ पर सर्टोली सेल्स अक्वायर मोटिलिटी, वहाँ पर मोटिलिटी गेन करेगा। ये हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे स्पर्म, ये एपिडिडाइमिस की जब बात कर रहे थे, ऑर्गन्स की बात कर रहे थे तब। ठीक, तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब ये स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्पर्म कंटेन्स 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज मिडिल पीस, एंड थर्ड इज टेल। ओके, तो उस हेड में क्या है, अब ये हेड में 2 चीज़ें कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है, एक न्यूक्लियस और दूसरा ऊपर से कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द एक्रोसोम। ठीक, और ये एक्रोसोम कंटेन्स एन एंजाइम दैट इज लैक्टिक इन नेचर, मतलब कि वो तोड़ने के लिए रहता है, तो वैसा एंजाइम कंटेन करके रखता है, और वैसे एंजाइम यहाँ पर उसको नाम दिया गया है हाइलुरोनिडेस। अब ये हाइलुरोनिडेस का काम क्या है कि इट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। जब ओवम इसके पास आएगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो उसके ओवम में क्या देखे थे कि ओवम में 2 लेयर का सेल देखे थे, वन इज कॉल्ड द कोरोना रेडियाटा एंड अदर इज जोना पेलुसिडा। ठीक, तो जोना पेलुसिडा जो है अब और कोरोना रेडियाटा, उन सभी को तोड़ने के लिए एंजाइम रहेगा दैट इज कॉल्ड द हाइलुरोनिडेस एंजाइम, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तभी तो इसका ये जो एक्रोसोम यूटिलाइज हो जाएगा। तब इसके पीछे जो न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस क्या कंटेन किए हुए, द जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन फाइबर्स, तो वो न्यूक्लियस को ट्रांसपोर्ट कर देगा इनसाइड द ओवम। ठीक, और वो फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसको फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक्रोसोम क्या करेगा कि ओवम का जो कोरोना रेडियाटा एंड जोना पेलुसिडा जो लेयर्स है, सेल्स का लेयर्स है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, और इसीलिए ब्रेक डाउन करता है। तो सो दिस एक्रोसोम secretes an enzyme that is lactic in nature, and that enzyme is called as hyaluronidase, which helps in penetration of ovum. Get my point? Get my point? Okay. The second portion is neck. अब नेक क्या है, तो नेक सबसे एक तो छोटा पोर्शन है, और इसमें 2 ही चीज़ प्रेजेंट रहता है, वन इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स and the other is distal centrioles. Distal centrioles
get converted into basal body, or basal body that forms axoneme. अभी हम लोग सब डिस्कस कर लिए, ठीक। चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक इज द स्मॉलेस्ट पार्ट फॉर्म्ड ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स के देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया है, मैं डाल दिया हूँ, दैट इज 9+0 अरेंजमेंट होता है। ये पढ़ना कहाँ है? सेल स्ट्रक्चर में पढ़ना है, सेल चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन चूँकि आप भूल नहीं चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ कि यहाँ पर नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स एंड अदर इज डिस्टल सेंट्रियोल्स, ठीक। प्रॉक्सिमल इन द नेक ऑफ स्पर्म लाइज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहेगा, और डिस्टल सेंट्रियोल्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ स्पर्म, इट चेंजेस इनटू द बेसल बॉडी एंड गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट्स ऑफ स्पर्म। और ये एक्सियल फिलामेंट्स जो है वही बाद में आगे और एक्सटेंड होते चला जाता और वो स्पर्म टेल का फॉर्मेशन करता है। पर यहाँ पर एक्सोनिम का जो स्ट्रक्चर है दैट शोज द 9+2 अरेंजमेंट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा? सेंट्रियोल्स इज 9+0, ओके। और सेंट्रियोल्स बैसल डिस्टल सेंट्रियोल्स हैं, वो बैसल बॉडी में कन्वर्ट होता है, और बैसल बॉडी एक्सोनिम में कन्वर्ट होता है, और एक्सोनिम का अरेंजमेंट क्या हो गया? 9+2, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द सेंट्रियोल्स एंड एक्सोनिम स्ट्रक्चर, ओके। द थर्ड part of this sperm is middle piece. मिडिल पीस में क्या कंटेंट रखता है? मिडिल पीस कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया गेट स्पाइरल्ड अराउंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सोनिम। सो इन द स्टेट लेवल ऑफ CPMT एक बार पूछा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में रहता है वो स्पाइरली किसके चारों तरफ रहता है? वो स्पाइरली बता दिया कि दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द स्पाइरल फॉर्म, बट वो स्पाइरल फॉर्म किसके चारों तरफ रहता है, किसको स्पाइरल करके रखता है? सो दैट इज एक्सोनिम, and this contains, middle piece contains mitochondria, so it is the powerhouse of the sperm, so it provides the ATP molecules for the movement of sperm, ठीक। and the last portion of a sperm is tail, so the tail contains central part contains axonym and the outer covering called the protoplasmic sheath. Tail shows lash movement, and the distal part of the axonym is not covered with the protoplasmic sheath and it is called the end piece, okay. and this sperm is viable for the 24 hours. ये 24 घंटे के लिए वायबल रहते हैं। अगर इस बीच में ओवम उसको मिलेगा देन दे विल गेट द फर्टिलाइज, और अगर नहीं तो वो ख़त्म हो जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग देखें स्पर्मेटोजेनेसिस और द मेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे द फीमेल गैमेटोजेनेसिस एंड दैट इज कॉल्ड द oogenesis। तब तक के लिए पढ़ते रहे बच्चे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।